Good morning, students. How are you all? I hope you are fine and enjoying your e-learning classes. So now we are on chapter number 2 in civics, that is diversity and discrimination. In this chapter, we will talk about the negative aspects of diversity that create how prejudice and stereotype. In the last class, we had studied these terms. Then, what is prejudice? Prejudice is the prejudging someone, or it means a negative judgment or opinion formed about a subject or a group. And what is stereotype? Stereotype is that how we create and fixed image about the person, like uh, and they judge these people on their fixed criteria. This is called stereotype. So in this class we studied more. Now let's start the term with the discrimination. Discrimination means in Hindi we can say भेदभाव करना, और डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजुडिस इन एक्शन. कब होता है ये? जब prejudice and stereotype create discrimination among the people of different communities. Discrimination refers to, what do you mean by discrimination? Means refer to the unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice. प्रेजुडिस, जब आप किसी के लिए अपने एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, आप उसको लिए नेगेटिव जजमेंट करते हो, तो देन आप क्या करोगे? उसके साथ उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे. लाइक आपने ये थॉट बना दी, अगर ये बॉय गंदा है, ये बॉय इंग्लिश नहीं बोलता, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, तो आपने उसको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करा. आपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करा तो यानी आपने उस बच्चे के साथ क्या करा? डिस्क्रिमिनेट कर दिया उसको. So that are various example, like English speaking people discriminate against those people who speak languages other than English. Means the English is a superior language. In the last previous video, I also give an example of English. That English speaking people discriminate against those people who speak language other than English. कि जो बच्चा English नहीं बोलता तो आपको वो हमारे ग्रुप में नहीं आएगा. तो ऐसे करके क्या करा? कुछ बच्चों ने एक बच्चे को डिस्क्रिमिनेट कर दिया. और ऐसा एज इन यूजुअल वी कैन सी इन आवर क्लासरूम ऑल्सो. हम क्लासरूम में भी बहुत बार ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं, ये बच्चा गंदा है, इससे हमें बात नहीं करनी, ये अपना काम नहीं पूरा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है. सो देयर आर वेरियस वे टू डिस्क्रिमिनेट. सो डिस्क्रिमिनेट द मीन्स व्हेन यू ट्रीट अ पर्सन इन अनफेयर वे. जब आप उसको एक फेयर जजमेंट नहीं दोगे, दैट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन. And other example are like parents generally discriminate between a boy and girl. In some villages also, कि that boy give the privileges and girls not. कि boys is needed to the education but हम girls को नहीं भेजेंगे. So such poor families are doing discriminated between boy and girl. Now second term again, it's inequality. जब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी को तो साथ में क्या क्रिएट हो रहा है कि आप उसको इक्वालिटी भी नहीं दे रहे हो, यानी इनइक्वल हो रहा है. तो यानी प्रेजुडिस प्लस स्टीरियोटाइप. जब आपके दिमाग में ये दोनों थिंग्स हैं, जब आपने प्रीजज भी कर लिया और आपने उसके लिए एक नेगेटिव थॉट भी ओपिनियन को क्रिएट कर लिया, तो ये दोनों मिलाकर क्या दे रहे हैं? ये दोनों मिलाकर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी कर रहे हैं. Like certain cultural and economic factor creates inequality among the people. On the basis of such inequality, people are discriminated. Like आपको लग रहा होगा कि सारी टर्म तो मैम सेम ही है, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप. बट ये क्या है? प्रेजुडिस, आपने जब किसी को प्रीजज किया. स्टीरियोटाइप, जब आपने अपनी नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर ली, तो आपने उसको क्या करा? उसको जब आपने इन्वॉल्व नहीं करा तो ऑब्वियसली उस पर्सन के लिए आपने उसको डिस्क्रिमिनेशन कर दिया. जब वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो यानी हमने क्या करा? उसको इक्वली ट्रीट नहीं करा, तो दैट इज इनइक्वालिटी. अब ये किन किन बेसिस पे होती है? ये कल्चरल बेसिस पे भी हो सकती है, ये रिलीजियस बेसिस पे भी होती है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी होती है. So inequalities, people are discriminated always. Now, what are the reasons that leads to discrimination and inequality? अब क्या क्या रीजन से हमारी ये inequality and discrimination create होता है?
So number one is diversity. अब diversity क्या है? In the first chapter, we learn about the positive aspect of diversity. That so many things in the diversity and तब भी क्या है कि unity in India show करता है. But these diversities sometimes discriminated the people between them. What do you mean by diversity? Diversing means being different. Like in the various India is known as diverse country, there are different languages, they are follow different religious practice here, follows culture and traditions are here. So the people who are the same group, so they discriminated the other group of religious belief. So that is discrimination happen when people act on their prejudice and stereotype. अब सेम है, डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? जब पीपल एक्ट कर रहे हैं बेटा उसी चीज के लिए, प्रेजुडिस उनके माइंड में है, अब वो किसी भी बेसिस पे करे कि दे आर द स्किन कलर, कि वो कल्चरल बिलीफ कि दे आर मुस्लिम, दे आर क्रिश्चियन, वी नॉट टॉक टू देम, सो दे आर लैंग्वेजेस स्पोकन. तो ये बहुत सारी चीजें हैं डाइवर्सिटी की जो हमें डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देता है. सेकेंड इज द मेन रीजन इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इकोनॉमिक बैकग्राउंड मीन्स कि हाउ द पर्सन इज रिच और पुअर. तो द डिफरेंस बिटवीन एक रिच जो पीपल होंगे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑलवेज पुअर पीपल को. सो द पुअर पीपल कौन होते हैं? पुअर पीपल डू नॉट हैव द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड. इवन पुअर पीपल के पास तो बेसिक नीड क्या होती है? आपका क्लोथिंग मीन्स रोटी कपड़ा एंड मकान जो हम बोलते हैं, दैट इज द बेसिक नीड. कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और इवन नॉट वियर टू द थिंग्स properly. So that economic background, people prejudge someone and they're discriminated. Right? You understand? I hope you understand these terms, diversity and economic background. So in that situation, अब कुछ होता है कि बेटा जब आपके पास दोनों ही रीजन होते हैं तो सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है. तो उस सिचुएशन में जो पीपल होंगे डिस्क्रिमिनेट ज़्यादा होंगे, और लाइक पुअर पीपल है, दे आर नॉट अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और ओपन सम एक्सपेंसेस. एंड सो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेबरहुड, स्कूल, ऑफिस, सोसाइटी, सो दे आर ट्रीट बैडली. हर जगह उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? बैडली ट्रीट किया जाता है. Now some example of discrimination and equality. In inequality, you can see the picture also. They are a picture of girl sitting alone and the temple, and the girl is playing cricket. तो like discrimination and inequality कैसे है कि like a girl is not allowed to play cricket because it is a, क्योंकि ये क्या है, ये एक stereotype image बनी हुई है, एक फिक्स इमेज बनी हुई है कि that cricket is always played by boys. ऐसा है? Not so. इज इट? आप क्या समझते हो बेटा कि क्या क्रिकेट बॉयज ही खेल सकते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकती? तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन. अगर गर्ल्स खेलना चाहें तो बोलते हैं कि गर्ल इज नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट. लाइक अनदर एग्जांपल इज अ हॉस्पिटल हायर्स ओनली फीमेल नर्सेज. एक हॉस्पिटल में अगर नर्सेज का काम करेंगे तो वो मेल स्टाफ नहीं, फीमेल ज्यादा होंगी. तो दैट इज ऑल्सो क्रिएट स्टीरियोटाइप एंड दैट क्रिएट डिस्क्रिमिनेट. ये एक इमेज बनाई हमने एंड देन हमने बॉयज जो इंटरव्यू के लिए गया उसको डिस्क्रिमिनेट किया. And third is a Dalit. A Dalit is not allowed to enter the temple. Dalit होते हैं बेटा low caste people और low bottom class लोग, जिनको कुछ लोग, ये इन हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि जिनको अलाउड ही नहीं था कि वो टेम्पल में भी एंटर करें. और like in you can see in this picture also a girl sitting alone, maybe their friend discriminated it कि that you are a black in color so you sit separately, or many other reason. So there are many reasons for discrimination between. Like what is multiple discrimination? Multiple discrimination मतलब एक से ज्यादा discrimination होना, यानी भेदभाव करना. माने एक चीज से आप कर रहे हो और multiple माने बहुत सारी चीजों से कर रहे हो. The situation become worse for those who fall under more than one factor of discrimination. सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स माने खराब हो जाना, खराब हो जाती है जब डिस्क्रिमिनेशन एक से ज्यादा फैक्टर्स में हुआ. जैसे कि नंबर वन, व्हेन कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कंबाइन. कल्चर माने उसका रिलीजन, उसका धर्म, सब कुछ अलग है. एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर क्या कि वो पुअर है. तो दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स कंबाइंड हो गई कि अरे रे ये हिंदू नहीं है, इससे हमें नहीं बोलना, और ये गरीब भी है साथ में. तो ये क्या हो गया? देयर आर टू मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो गए. लाइक अनदर, if a people
आर पुअर एंड बिलोंग टू एनी लो कास्ट। एक गरीब भी है वो, और एक वो लो कास्ट भी है। लो कास्ट पीपल है ना, लो कास्ट। और अ ट्राइबल कास्ट है, वो किसी विलेज में है, उनकी कोई छोटी जाति है। सो और अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता है, या वो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, एक छोटे से शहर से, छोटी सी विलेज से बिलोंग करता है। सो देयर आर एक्सपीरियंस मोर देन वन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन मिक्स हो गई और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का क्रिएट करती है। Now, another term is the caste system and discrimination. In India, one of the reason of discrimination and inequality is the caste system also. Like a background in diversity, this is the caste system is also the one big factor to create discrimination. Since early time, Indian society has been divided along the caste line, where people were placed in a hierarchical order, either above or below the other caste. Means what we say, the caste was a social system in which community or group of people were placed in a sort of ladder where each caste were either above or below the other. Means you can see the ladder. Ladder से आप समझ रहे हो कि ladder के up में means top of the side, where the people means upper caste people are belongs to, next, then after, then and the below caste. So this is the Hindu system, Hindu caste system, and which is a social evils practice in early time. Social evils means ये एक क्या है, ये एक समाज की एक कुरीति है जो कि पहले के टाइम में बहुत ही फॉलो होती थी। कास्ट सिस्टम लाइक देयर आर द मेंबर ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास, and the other untouchables are called Dalits people. So this is the Hindu caste system, and they create a very discriminated between the people. Like the top of the Brahmin people, ब्राह्मण के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जब बैठेंगे तो उनके साथ में लो कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ सकते। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन between the upper class and lower caste. And what are these classes? Now I explain. The caste system was a social system, you know that, है ना, सोशल सिस्टम है, और लेडर से ये प्रूव भी हो रहा है कि कौन हमारे टॉप पर है, कौन हमारे धीरे धीरे बॉटम में आ रहे हैं। तो दो सेक्शन पीपल हु वर प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, जो आपको टॉप ऑफ द लेडर पे दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं अपर कास्ट। क्या बोलते हैं? अपर कास्ट। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड वेरी सुपीरियर। Okay. On the other hand, those group of people who were placed at lower side, जैसे जैसे धीरे आए, they are called low caste people. Low caste जिनका अनवर्दी है, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड वेरी बॉटम, जो बिल्कुल बॉटम में आ गए हैं, उनको हम बोलते हैं अनटचेबल। मीन्स किसी भी चीज को छूने से मना करना, अनटचेबल। और उनको हम बोलते हैं दलित और शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स। सो द अनटचेबल्स वर एक्सक्लूडेड बाय द हायर क्लास। बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने कि वो बिल्कुल भी कहीं भी एंटर नहीं हो सकते, उनको कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। ठीक है, तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द लोअर कास्ट पीपल। सो आप ये देख रहे हैं, ब्राह्मण है जो टॉप मोस्ट क्लास में है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्षत्रियास जो कि वेरियर्स हैं, है ना। वैश्यास जो कि बिजनेस क्लास पीपल हैं। शूद्रास जो कि फार्मर है। एंड अनटचेबल्स हु आर क्लीनिंग, हु आर व्हाट दे डूइंग द जॉब, दे आर क्लीनिंग जॉब, दे आर स्टार्ट डूइंग द क्लीनिंग जॉब। सो दीज आर द हिंदू कास्ट सिस्टम। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर फेस्ड अनटचेबल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे अनटचेबल्स तो हैं। अब आपको देखा कि टॉप क्लासेस के जो पीपल हैं उनको सारी प्रिविलेजेस हैं, और लेडर के बिल्कुल जो नीचे हैं शेड्यूल कास्ट और शूद्रास, उनको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती। दे आर एक्सक्रीड बाय द दीज क्लासेस। सो व्हाट दे डू, वो क्या काम करते थे, उनको कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो नाउ दे वर फाउंड टू डू द क्लीनिंग जॉब। वो क्या काम करते थे? सिर्फ क्लीनिंग, सफाई का काम करते थे। लाइक कूड़ा उठाना, पिकिंग गार्बेज, जैसे रिमूविंग डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। ठीक है। सेकेंड डिस्क्रिमिनेट, दे कुड नॉट यूज द पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी लाइक कि अगर आपको वेल से पानी लेना है तो वो वेल से नहीं ले सकते थे। वो उन रिक्शे में उन चीजों को यूज नहीं कर सकते थे जो कि अदर पीपल यूज करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। उनको टेम्पल में अंदर अलाउड नहीं था। ठीक है, उनको नहीं अलाउड था, किसी भी अपर कास्ट के घर में जाना अलाउड नहीं था। दे कैन
नॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, उनके लिए एक सेपरेट वेल एंड सेपरेट कोई भी वाटर रिसोर्सेज होते थे जिनसे वो पानी लेते थे. एंड देयर चिल्ड्रन कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू द अपर क्लास स्टूडेंट इन द स्कूल. अगर शूद्र के बच्चे, अनटचेबल्स के बच्चे भी उस स्कूल में हैं, तो दे आर नॉट सिट टुगेदर विद द अपर कास्ट पीपल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. लाइक पहले ये हमारी जो सोशल लेवल्स थी, यही सारी प्रैक्टिस होती थी. Children, I hope you understood the concept and enjoy the chapter. In the next class, we learn more about of this chapter, that how constitution make law for these social evils. So till then, goodbye. Have a nice day.